Everyone, let's start our session with a meditation. Sit comfortably, relax, take a deep breath in, realize all your tension and tiredness getting removed. Focus on your original qualities of purity, power, peace, love, happiness, and wisdom. Let me look at myself. I, the soul, am the power whose thoughts and feelings those for whom they are created. Whether I'm sitting in a closed room or miles away, my thoughts for others reach them. Others create thoughts corresponding to the energy they receive from me, and that becomes the foundation of our relationship. From today, I pay attention to the thoughts I create for everyone, be it friends, family, or even strangers. I don't wonder over their behavior and negativities. I put a full stop. I put a full stop. I understand them and adapt myself to be with them. I remember that though they carry certain negative sense bias, they are originally beautiful souls. My thoughts are pure, and I pay attention to my karma. How I deal with others is my responsibility. Irrespective of how they behave with me, my each thought creates my destiny. Om Shanti. So let us start our session. I hope the screen is visible to all. Today's chapter is Let Parents Turn Counselors. Suresh Oberon. Children are going to counselors today because they are able to share with them about things they fear discussing with their parents. Sister Shivani. Very true. When children face problems, are in pain, and need support, they go to others for help instead of confiding in their parents. In fact, they ensure that their problems remain a secret from their parents. This is because when they confess to a counselor about the mistakes they have made, about a relationship they are in, or an addiction they have fallen prey to, he responds with understanding. If an outsider confesses things to you, how will you respond? In last chapter, we were discussing about this problem that children are from their parents because they feel that their parents won't accept them. That was our discussion going on. And today's question that started with these children are going to counselor. Why are they going to counselor? Why does they don't want their problem to get shared with their parents? So, Mr. Shivan,
that they feel that they can. Mr. Shivan, सुरेश ओबेरॉय जी से मैं पूछ रहे हैं कि अगर कोई आउटसाइडर आपको कन्फेस करना है चीजें उसने करी है कुछ अगर उसने मिस्टेक्स करे हैं कोई एडिक्शन है तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? सुरेश जी कह रहे हैं आई टॉक टू हिम पोलाइटली आई बी स्टेबल बिकॉज इट विल नॉट हर्ट मी टू लिसन टू हिम सिंस आई डू नॉट शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिम आफ्टर दैट आई एडवाइस। सुरेश जी कह रहे हैं कि मैं उनसे बहुत पोलाइटली बात करूंगा स्टेटली रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि मैं उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में तो हूँ नहीं। उसके बाद ही मैं उनको एडवाइस दूंगी। सिस्टर शिवानी राइट वी विल एक्सेप्ट हिम एंड से इट इज ओके इफ समथिंग वेंट रॉन्ग we will find a solution even if you have developed a wrong habit it is okay we can work on it and get rid of it. If you failed an exam, it is okay. This year you can study more and pass. So basically, your approach will be one of acceptance, love, and support, and it will be solution oriented. तो सिस्टर शिवानी कह रही है जब कोई आउटसाइडर होता है तो उसको हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं अच्छी तरह से उसको लव एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफी सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है हम उनसे कहते हैं कोई बात नहीं कोई गलती हो गई तो उसे अभी सुधार सकते हैं नाउ इज द टाइम। तो इस एनर्जी के साथ जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो फील करते हैं कि हाँ वो हमसे शेयर कर सकते हैं। I'll be stable and not get angry with an outsider. I will also not ask him questions like, how did you get into such a bad habit at this young age? Or who all do you hang out with? तो सुरेश जी कह रहे हैं कि मैं तो स्टेबल रहूंगा और गुस्सा भी नहीं होगा आउटसाइडर के साथ मैं उससे ये भी क्वेश्चंस नहीं करूंगा कि तुमने कैसे एक बैड हैबिट इतनी छोटी उम्र में तुम कैसे बैड हैबिट को लेकर आ सकते हो अपनी लाइफ में किसके साथ में तुम घूमते हो। Who would you ask these specific questions to? सिस्टर शिवानी पूछ रहे हैं कि आप ये specific questions किससे पूछते हैं? I would ask this to my own child if he came to me with such a problem. तो सुरेश जी कह रहे हैं मेरा अगर खुद का चाइल्ड होगा तब मैं उससे ये सब क्वेश्चंस करूंगा। A child in pain comes to elders for love, support and acceptance and also to find a way out of the problem he is facing. जब कोई चाइल्ड पेन में होता है तो वो एल्डर्स के पास क्यों आता है? ताकि उसको लव मिले सपोर्ट मिले एक्सेप्टेंस मिले क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेन में ही है ना और उसको अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिले जो प्रॉब्लम वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है ही मे नॉट नीड अ सोल्यूशन इमिजिएटली उसको सॉल्यूशन इमिजिएटली नहीं चाहिए। Sometimes there is no solution at all in a situation or the child may already have it. कई बार सिचुएशंस में क्या होता है कोई उसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता या फिर सोल्यूशन ऑलरेडी चाइल्ड के पास है but at that particular moment all that the child wants is that someone should heal his wound with love and understanding। उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी को क्या जरूरत होती है कि उसका जो वुंड है उसको कोई हील करे लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ है।
That is why it is so important to listen to him patiently. तो ऋषि कह रहे हैं इसीलिए बहुत important होता है इस मोमेंट में कि हम पेशेंटली उसको सुने. Yes, if a child shares his problems with his parents, they usually react even before he has finished telling his story. तो सिस्टर शिवानी कह रही है अगर कोई चाइल्ड है जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो पेरेंट्स यूजुअली रिएक्ट कर देते हैं. पेरेंट्स रिएक्ट कर देते हैं और उसको पूरा बोलने भी नहीं देते हैं. The parents are not stable and create anger and pain. पेरेंट्स स्टेबल नहीं रहते हैं और वो एंगर और पेन वो भी क्रिएट करते हैं. चाइल्ड तो ऑलरेडी पेन में है ही और पेरेंट्स हियर एंगर एंड पेन दोनों क्रिएट कर रहे हैं. The actions of a child matter a lot to the parents as it is a very important relationship for them. As soon as they listen to his mistakes, their own mental state goes down. They feel angry, irritated, hurt, and let down. Their first conversation with him is, how could you do this? What did we teach you? You have brought a bad name to the family. What will people say? In this case, what sort of energy do the parents transfer to the child and what is their way of talking? जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास में आता है तो उसके पेरेंट्स उसको क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं. वो पहले तो एंग्री होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, हर्ट होते हैं और वो पूछते हैं तुम इसे कैसे कर सकते हो, क्या यही हमने तुम्हें सिखाया है, तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है. ऐसे ऐसे ही डायलॉग्स मारते हैं. मतलब वो जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं अपने चाइल्ड को वो कैसी एनर्जी होती है और किस तरह से वो बात करते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग लव सपोर्ट केयर एंड हीलिंग दे गिव हिम द ऑपोजिट ऑफ दैट, क्रिटिसिज्म एंड जजमेंटल बिहेवियर. उसको लव सपोर्ट केयर और हीलिंग देने की जगह हम उसको अपोजिट दे देते हैं, क्रिटिसिज्म और जजमेंटल बिहेवियर. When the child receives such a reaction from his parents, it adds to his pain. और जब ऐसा रिएक्शन उस चाइल्ड को मिलता है तो फिर उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है. Parents must think of themselves as doctors and treat the child like a patient who is injured. Parents खुद खुद को डॉक्टर्स की तरह समझना चाहिए और उस चाइल्ड को पेशेंट की तरह समझना चाहिए जो कि इंजर्ड है अभी. टू हील हिम इज देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कि डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपने पेशेंट को हील करे, वैसे ही पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने चाइल्ड को हील करे. दे डू नॉट इवन नीड टू नो हाउ इट ऑल हैपेंड. A doctor never wastes even a few minutes asking the patient, but how did you fall? Because healing him is his priority. जैसे डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने पेशेंट को पहले हील करे, उसको ये पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो कि तुम गिरे कैसे, तुम्हें चोट कैसे लगी, वैसे ही पेरेंट्स को भी होना. बट पेरेंट्स कैन नॉट बिहेव लाइक अ डॉक्टर बिकॉज दे ऑब्वियसली गेट हर्ट. तो सुरेश जी कह रहे हैं पेरेंट्स डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि वो भी तो हर्ट हो जाते हैं. तो सिस्टर शिवानी कह रही है when a child is injured physically, what do the parents do? They give him first aid, console him, and then ask him what happened. Their instant response is to heal him. Some parents, however, are so taken aback on seeing the injury and blood loss that they are unable to deliver at that time. Just as parents' priority should be to tend the child's physical wounds, they must heal his emotional pain immediately as a priority. When the child comes to them for support, that is not the time to question him about how he got into trouble, why he forgot to follow their instructions, and so on. Otherwise, the moment they reject his act or behavior, a gap is created between them and the child. वो हर्ट तो होते हैं पेरेंट्स लेकिन फिर भी उस टाइम पेरेंट्स को क्या करना होता है. जैसे अगर चाइल्ड को फिजिकल इंजरी होती है तब वो क्या करते हैं, पहले उसको फर्स्ट एड देते हैं, फिर बाद में उसको कंसोल करते हैं, लास्ट में उससे पूछते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ. तो उसी तरह से ये जो इमोशनल पेन है कभी भी हमें ये नहीं पूछना है कि कैसे हुआ, पहले उस टाइम हमें हीलिंग करनी है क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. Sometimes, soon after listening to a fraction of the child's confession, the parent's reaction is so strong that the child is unable to tell them the whole issue.
कई बार क्या होता है, थोड़ा सा चाइल्ड अपना कन्फेस करता है, उतने में पेरेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है कि चाइल्ड अपनी पूरी बात को तो कन्फेस कर ही नहीं पाता. सपोज आई एक्सीडेंटली break a glass in your room and also drop a piece of crystal placed there. If the moment I confess about the broken glass, I get a very long and harsh reaction from you. I would rather keep mum about the bigger loss of having dropped the crystal too. If the child is unable to open up to his parents, his pain remains unhealed. He then looks for support outside from someone who can accept him despite his mistakes and is willing to heal his pain. If a counselor can help a child after listening to him in a non judgmental way, can't parents turn counselor for their children, family, and friends? A counselor can give advice, but the love and support for emotional healing can come only from parents. तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अगर एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया सिस्टर शिवानी ने कि अगर वो रूम में एक ग्लास हो और क्रिस्टल हो, तो दोनों उनसे गिर जाए, टूट जाए. और उन्होंने जैसे कन्फेस करना स्टार्ट किया ग्लास के बारे में, तो ग्लास के बारे में बताते ही क्या होता है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है. इसीलिए जो बिगर लॉस हुआ, जो क्रिस्टल पे टूटा, उसके बारे में तो बताया ही नहीं. तो जो पेरेंट्स है, उनके सामने चाइल्ड अपने आप को पूरा ओपन अप नहीं कर पाता है, थोड़ा सा कन्फेस ही कर पाता है. इस वजह से क्या होता है, जो पूरा पेन रहता है ना, वो अनहील्ड रहता है, क्योंकि पूरा वो कन्फेस नहीं कर पाया. जो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ द स्टोरी बताया, उतने में ही उसे और भी ऑपोजिट एनर्जीज मिलने लगी, क्रिटिसिज्म और जजमेंट मिलने लगे. उसके बाद क्या करेगा वो चाइल्ड, बाहर सपोर्ट खोजने लगेगा कि कोई उसे एक्सेप्ट करे, उसने मिस्टेक करी उसके बावजूद उसे एक्सेप्ट करे और उसे हील करे. जो काउंसलर होते हैं, वो एक चाइल्ड को कैसे सुनते हैं, नॉन जजमेंटल वे में. तो क्या पेरेंट्स काउंसलर नहीं बन सकते अपनी चिल्ड्रन के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए? जो काउंसलर होता है ना, वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, पर जो लव और सपोर्ट होता है इमोशनल हीलिंग के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से ही आ सकता है. How will it be if parents do both the things? They act as a counselor by patiently listening to the child and not reacting, and they also give him love. तो सुरेश जी कह रहे हैं कि पेरेंट्स अगर दोनों चीजें कर पाए तो, लाइक अ काउंसलर जो कि पेशेंटली एक बच्चे को सुनते भी है, रिएक्ट नहीं करते और उसे लव भी दे. टू लिसन टू समवन विदाउट रिएक्टिंग मीन्स वी एक्सेप्ट हिम एंड डू नॉट क्रिएट इवन अ सिंगल जजमेंटल थॉट इन आवर माइंड. अगर हम किसी को सुनते हैं विदाउट एनी रिएक्शन, उसका मतलब क्या है कि हमने उसको एक्सेप्ट किया है और कोई भी जजमेंटल थॉट अपने माइंड में नहीं क्रिएट करी. When we react, it means we no longer have control on ourselves. ये तो हम जानते ही है ना कि एक रेस्पॉन्स होता है और एक रिएक्शन होता है. रिएक्शन क्या होता है, वो एक स्टिम्युलस के बेसिस पर, उसके ऊपर डिपेंडेंट करके जो हम करते हैं ना, वो रिएक्शन होता है. और रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, जब हम अपने कंट्रोल में हैं. तो मतलब अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एंड आर सेंडिंग अक्रॉस द एनर्जी ऑफ रिजेक्शन. और उस टाइम हम कैसी एनर्जी देते हैं, रिजेक्शन की देते हैं, एक्सेप्टेंस की नहीं देते. दिस पुशेस द पर्सन अवे फ्रॉम अस. इसकी वजह से वो जो पर्सन होता है वो हमसे दूर चला जाता है. When we are judgmental, we get angry and hurt. जब हम जजमेंटल होते हैं तभी हम गुस्सा होते हैं, तभी हम हर्ट फील करते हैं. दिस ब्लॉक्स आर एनर्जी ऑफ लव. इसकी वजह से हमारी एनर्जी ऑफ लव ब्लॉक हो जाती है. एट एनी गिवन टाइम अ पर्सन कैन रेडिएट ओनली वन काइंड ऑफ एनर्जी. कोई भी मोमेंट हो, उस वक्त वो पर्सन एक ही तरह की एनर्जी रेडिएट कर सकता है. वी कांट बी लविंग एंड रिएक्टिंग एट द सेम टाइम. तो लविंग और रिएक्टिंग दोनों हम एक साथ नहीं कर सकते. पेरेंट्स ऑफन टेल देयर चिल्ड्रन आई एम एंग्री विद यू बिकॉज आई लव. पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड टू एनर्जीज एट द सेम टाइम. पेरेंट्स कैन नॉट लव देयर चिल्ड्रन इन द सेम मोमेंट दे स्कोल्ड. तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, लव और एंगर.
इसलिए हमें ध्यान रखना है। पेरेंट्स में नॉट हैव लव देयर चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट बट दे डिड लव हिम बिफोर एंड आफ्टर दैट। सुरेश जी कह रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं लव किया, लेकिन उससे पहले और उसके बाद तो किया। बट दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट व्हेन दे नीडेड टू रेडिएट लव एंड एक्सेप्टेंस टू देयर चाइल्ड। सिस्टर शिवानी कह रही है पर वो बहुत क्रूशियल पॉइंट था उस चाइल्ड के लिए, जब उसको लव और एक्सेप्टेंस चाहिए। When a child comes to his parents in a state of emotional pain, his self-confidence is low. जब कोई चाइल्ड इमोशनल पेन में होता है, उस वक्त वो अगर अपने पेरेंट्स के पास आता है, उस वक्त उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है। He may have made a mistake and could be feeling guilty about it. उसने मिस्टेक करी होगी और वो गिल्टी खुद फील कर रहा होगा। ही कुड ऑल्सो बी अफ्रेड ऑफ हिज फैमिलीज रिएक्शन। उसे अपनी फैमिली के रिएक्शन से भी अभी डर लग रहा होगा। If he is already in a negative state of mind and the parents also give him the energy of anger and criticism, then his mental state will be pushed toward। तो वो खुद ही ऑलरेडी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है और उसी वक्त उसके पेरेंट्स उसको एंगर और क्रिटिसिज्म दे देते हैं, तो उसका मेंटल स्टेट और भी लो हो जाएगा। द पेरेंट्स फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग द चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड टू नॉर्मल एंड लेटर गिव हिम एडवाइस और सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या होता है पेरेंट्स का कि वो स्टेट ऑफ माइंड जो उनके चाइल्ड की है उसको पहले नॉर्मल करे, तब उसको एडवाइस और सॉल्यूशन दे। इफ दे एडवाइस when he is most depleted, the child will not have the power to implement it। अगर हमें कोई एडवाइस मिलती है जब हम डिप्लीटेड स्टेट में होते हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें पावर चाहिए। दिस अंडरस्टैंडिंग शुड बी अप्लाइड बाय एवरीवन वेदर अ पेरेंट, फ्रेंड और बॉस। ये अंडरस्टैंडिंग सबके लिए होनी चाहिए, पेरेंट के लिए, फ्रेंड के लिए, बॉस के लिए, सबके लिए। Usually, people waste a lot of time discussing the mistake and the circumstances leading to it. They do not focus on the solution। सुरेश जी कह रहे हैं कि लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जो मिस्टेक होती है उसी को डिस्कस करते रहते हैं और उसी के सर्कमस्टांसेस जो आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते। Sister Shivani, if someone has accidentally broken something, the solution for it is that he should be more careful next time। सो द सॉल्यूशन लाइज इन फ्यूचर। अगर किसी से कोई चीज टूट जाती है तो सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहो। तो सॉल्यूशन कहाँ पे? फ्यूचर में। बट एक पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस नीड्स टू बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली सो दैट ही डज नॉट डेवलप अ फियर ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। पर वो जो पर्सन है जिससे मिस्टेक हुई है, जिससे कुछ ब्रेक हुआ है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमें इमीडिएटली रिस्टोर करना है। सॉल्यूशन तो भले ही फ्यूचर में कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना है, लेकिन उस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें प्रेजेंट में रिस्टोर करना है, ताकि उसको फियर ना हो हैंडल करने के लिए नेक्स्ट टाइम। लेट अस फिक्स दिस सिंपल फॉर्मूला फॉर लाइफ। द बिगर द मिस्टेक अ पर्सन कमिट्स, द मोर लव वी विल गिव हिम। एक सिंपल फॉर्मूला हमें रखना है, जितनी बड़ी मिस्टेक होगी उतना ज्यादा प्यार देना है। Only after that we will we give him advice। और तभी हम एडवाइस देंगे। फर्स्ट एम्पावर देन एडवाइस। पहले एम्पावर करना है, उसके बाद एडवाइस देनी है। इफ अ पर्सन इज disempowered, he may be unable to rebuild his confidence for an entire lifetime, even beyond। अगर कोई पर्सन डिसएम्पावर्ड है तो फिर उसे अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने में एंटायर उसका पूरा जीवन लग सकता है। इवन बियॉन्ड, mistakes can still be amended tomorrow। Even if a mistake cannot be rectified, it is after all just one very small part of life। मिस्टेक क्या होते हैं? वो चेंज किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं कल भी। और अगर कोई मिस्टेक नहीं ठीक की जा सकती है, तभी भी क्या है, उस पर्सन की पूरी लाइफ का एक बहुत ही छोटा पार्ट है वो मिस्टेक। लाइफ उसकी और बड़ी है। लेट अस नॉट मैग्नीफाई थिंग्स एंड मेक देम सो बिग। तो हम उसे इतना मैग्नीफाई करके बढ़ाते क्यों हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू स्ट्रेंथन दैट पर्सन बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क एंड क्रॉस मेनी मोर सिचुएशंस इन लाइफ। दैट शुड बी आवर फोकस। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उस पर्सन को स्ट्रेंथन करें,
क्योंकि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस क्रॉस करनी होती है। अ काउंसलर लिसन्स टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पेशेंट्स, including details of even a sin committed by them. But he does not pass a judgment on them. He dwells on the solution. When a patient receives the energy of respect from his counselor, which the family and friends usually withdraw upon knowing about his wrong act, he is able to return to a normal state quickly. काउंसलर क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुनता है, अपने पेशेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सुनता है, एकदम डिटेल्स उसे मिलती है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी सिन उसने कमिट करके रखा होता है। पर काउंसलर कोई जजमेंट नहीं पास करता उनके ऊपर, वो सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। इसीलिए जो पेशेंट काउंसलर के पास गया है उसे रेस्पेक्ट वाली एनर्जी मिल रही है अपने काउंसलर से, और वो रेस्पेक्ट वाली एनर्जी उसे अपने फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिलती अगर उन्होंने उनको बताया होता। क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स जब जानेंगे इन्होंने कुछ गलत किया है, तो फिर उन्हें ऑपोजिट एनर्जी मिलेगी। और जब काउंसलर से वो रेस्पेक्ट वाली एनर्जी मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है, इसीलिए वो पेशेंट थोड़ा नॉर्मल जल्दी हो पाता है। वी शुड बी नॉन जजमेंटल, नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन आवर थॉट्स। हमें नॉन जजमेंटल बनना होगा, सिर्फ वर्ड्स में नहीं, अपने थॉट्स में भी। मतलब जब हम सुन रहे हैं किसी का, किसी ने कुछ अगर मिस्टेक करी है, कोई सिन कमिट करा है, तो हम जब सुन रहे हैं ना, तो अपने थॉट्स में भी हमें वो चीजें नहीं लेकर आनी है, जजमेंट वाले थॉट्स। वंस दैट पर्सन इज हील्ड, he will be able to solve his problems. We cannot solve others problems. जैसे ही वो पर्सन हील हो जाएगा, तो वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, हम दूसरों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। देयर हैव बीन केसेस ऑफ ऑनर किलिंग। सुरेश जी कह रहे हैं ऑनर किलिंग के भी केसेस होते हैं। व्हेन पीपल बिकम टू जजमेंटल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट टेक्स एन एक्सट्रीम फॉर्म। ऑनर killing is an example of that. Such social evils manifest rarely. But what happens commonly as a result of judgmental behavior is that parents snap all ties with their children and refuse to support them. ऑनर किलिंग कैसे डेवलप होती है, जब लोग बहुत टाइम से बहुत जजमेंटल रहते हैं, तब उसी का एग्जाम्पल होता है ऑनर किलिंग। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। And when their children's decisions go wrong, they tell them, this had to happen as you did not listen to us. तो सुरेश जी कह रहे हैं जब उनके चिल्ड्रन का डिसीजन रॉन्ग होता है, तो पेरेंट्स ये भी बोलते हैं ये तो होना ही था क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऑल दिस इज सो सेटल। सो व्हाट हैपेंस टू द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? सिस्टर शिवानी कह रही है तो बहुत सेटल है, बहुत सूक्ष्म है। उस टाइम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का क्या होता है, द रोल ऑफ द पेरेंट्स इज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, to give them advice, and most importantly, to continue giving them their love and support. रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का रोल क्या है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे पूरी लाइफ के लिए, उनको एडवाइस दे, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनको लव और सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे। सपोज देयर हैज बीन अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन इन द फैमिली ओवर द चाइल्ड्स बिगर डिसीजन सच एज करियर और रिलेशनशिप। द पेरेंट्स वांट द चाइल्ड with their best intentions. Do not do this because it will have difficult repercussions that you will be forced to bear lifelong and you'll never be happy. Sometimes the child is so stuck on his decision that he goes ahead with it despite everyone in the family advising him against it. But once the decision is taken, the parents have to change their mindset completely. They must accept the situation and be there for the child. If they continue with the same old mindset and negative vocabulary, what would be? What would they be actually doing? यहाँ पे सपोज करिए कि कोई बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, जो कि चाइल्ड है उसने अपने लाइफ के बिगर डिस्कशंस के बारे में बात करी है, जैसे करियर या रिलेशनशिप। तो जब वो डिस्कशन चल रहा है तब तो पेरेंट्स वार्न कर सकते हैं अपने चाइल्ड को कि ऐसा मत करो, इसके वजह से तुम्हें रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में और तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो चाइल्ड रहता है वो अपने डिसीजन के साथ में बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है और फिर वो सबके अगेंस्ट जाकर के भी उसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में। तो जब ये चीजें हो गई, तभी भी
पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को उसके बाद अपना जो ओल्ड माइंडसेट है उसको चेंज करना है और अपने चाइल्ड को सपोर्ट करना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। दे वुड बी कर्सिंग देयर ओन चाइल्ड। सुरेश जी कह रहे हैं वो तो अपने चाइल्ड को ही कर्स करते। सो वंस द डिसीजन इज टेकन बाय द चाइल्ड, द पेरेंट्स थॉट प्रोसेस should change. Instead of saying now wait and watch what happens next, the parents should say if you are still going ahead with your decision, our blessings are with you. जो पेरेंट्स है वो मन मन में ऐसे सोचते हैं कि अब वेट एंड वॉच क्या होता है नेक्स्ट। ये कहने की जगह पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए कि ठीक है तुम अपने डिसीजन के साथ आगे जा रहे हो, हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, यू शुड गेट द बेस्ट इन लाइफ, तुम्हें लाइफ में बेस्ट मिले। तो इस तरह से ब्लेसिंग्स वाली भावना रखनी है अपने मन में। इफ फैमिली मेंबर्स गिव देयर गुड विशेस, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट फॉर द चाइल्ड। अगर फैमिली मेंबर्स अपनी गुड विशेस रखते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्या होता है उस चाइल्ड के लिए वो जो डिसीजन रहता है, अगर वो खराब डिसीजन भी है तभी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस चाइल्ड के लिए वो चीजें वर्कआउट करेंगी। बट इफ द चाइल्ड्स डिसीजन टर्न्स टू बी रॉन्ग फॉर हिम, व्हाट इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस केस? अगर चाइल्ड का डिसीजन रॉन्ग होगा तब फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट करे। यस, बट व्हाट इज द यूजुअल रिस्पॉन्स फ्रॉम पेरेंट्स? यूजुअली क्या रिस्पॉन्ड करते हैं पेरेंट्स? सी आई हैड टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू हैपन, नाउ रिग्रेट। पेरेंट्स का थॉट होता है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये होने वाला है, अब रिग्रेट करो, पछताओ। सो व्हाट वर द पेरेंट्स एक्चुअली वेटिंग फॉर? सिस्टर शिवानी कह रही है पेरेंट्स एक्चुअली वेट किसके लिए कर रहे थे? दे वर वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू मेक एन एरर, रिग्रेट एंड कम बैक टू देम सो दे कुड प्रूव देमसेल्व्स राइट। पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि वो चाइल्ड कुछ गलती करे, फिर पछतावा हो, फिर वो उनके पास वापस आए और फिर पेरेंट्स प्रूव करें कि देखो हम लोग सही थे। Yes, they wanted that to happen so that for the rest of his life the child does everything according to them. इसके लिए वो वेट क्यों करते हैं? ताकि अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए वो चाइल्ड हर कुछ अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करे। इज दिस लव एंड सपोर्ट? क्या ये लव एंड सपोर्ट है? इज दिस अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? ये है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? इज दिस अ सोल टू सोल कनेक्शन? ये क्या हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है? इट इज नथिंग बट अ पावर एंड कंट्रोल गेम। ये सिर्फ और सिर्फ पावर और कंट्रोल गेम है। Power and control game. Mantras for being loved. When people share their problems or mistakes with a counselor, he is detached and stable. Being stable means the mind is not critical or judgmental. जब कोई काउंसलर से हम शेयर करते हैं तो वो डिटैच रहता है, स्टेबल रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसका माइंड क्रिटिकल या जजमेंटल नहीं है, वो क्रिटिसाइज नहीं करता है अपने पेशेंट को। ऑन हियरिंग द मिस्टेक्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट क्रिटिकल एंड एंग्री, फील हर्ट एंड लेट डाउन। विद ऑल दीज इमोशंस द एनर्जी ऑफ लव एंड केयर गेट्स ब्लॉक्ड। वैसे तो हम कहते हैं ना हमारी फैमिली फ्रेंड्स वो हमें लव करते हैं, हम खुद भी कहते हैं हम अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को लव करते हैं, पर अगर ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाए हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो हम क्या हो जाते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमसे ये गलती कैसे हो गई, जजमेंट पास करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, लेट डाउन फील करते हैं। इन इमोशंस के साथ हमारी एनर्जी ऑफ लव वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस वक्त हम वो रेडिएट नहीं करते हैं। इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं, सबको एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, और अपने मन में ब्लेसिंग्स रखना है। The one who makes a mistake is in pain due to guilt and fear of facing the family. जिसने मिस्टेक करी वो तो पेन में है ही, क्योंकि उसके मन में गिल्ट है जो उसने मिस्टेक करी उसका। और अब तो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को कैसे वो फेस करेगा? फैमिलीज रोल इज टू हील द पेन एंड नॉट ऐड पेन टू द एक्सिस्टिंग पेन बाय गेटिंग एंग्री विद हिम। फैमिली का रोल क्या है कि वो अपने चाइल्ड को हील करे और उसके पेन में ऐड ना करे अपना हर्ट और अपना पेन डालकर। When someone is in pain, our role is to empower him, increase his self-confidence, and help him focus on the solution rather than discussing his past mistakes. जब कोई पेन में होता है तो हमारा रोल क्या होता है कि हम उसको एम्पावर करें, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें, उसको एम्पावर करना है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज करना है और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, उसकी पास्ट मिस्टेक के ऊपर फोकस नहीं करना है, पास्ट मिस्टेक को अपने मन चित से साफ करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, विल मीट अगेन टुमारो।